So under section 74, duty drawback is allowed provided the goods are returned or exported. Duty drawback is allowed on return or export of imported goods within 2 years since removed for home consumption and PCC or CC may allow extension. सर एक्सटेंशन बोर्ड है ना? क्या एक्सटेंशन बोर्ड है ना इसमें? 70 अभी देखते हैं ना, आगे मिल PCC जाएगा कुछ सेक्शन, है ना. एंड देन if goods are not used, if goods are unused, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक है? 98%. 98%. 98%, right? If used, in that case, duty drawback at prescribed rates. Right? कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला है? 98%. वो तो यूज्ड के लिए है. अगर अनयूज्ड के लिए, अगर यूज्ड है तो 95, 85, 75, फिर 70 ऐसा टाइम पीरियड है वो, उसके हिसाब से. maybe capital goods. उसमें रेट्स मैक्सिमम कितने पीरियड के दिए हुए हैं? 18 मंथ. 18 month. 36 महीने के रेट से. वो कार के लिए, वो मतलब व्हीकल के लिए है वो कुछ रूल्स. पर्सनल अभी आपको- यूज एंड मोटर व्हीकल के लिए है. अभी मोटर एंड कमर्शियल के लिए भी लगे. 4 years for personal use and motor vehicle and commercial use for 18 month. अब यहाँ पर आप देखें, एक सेकंड, मैंने शायद दूसरा खोल दिया है. जस्ट a minute, hold on. सर हम्म, हाँ, इसमें तो बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड में एक्सटेंड द पीरियड. अगर बोर्ड लिखा है तो बोर्ड होगा भाई, गलती अपने से हो सकती है. अभी कंफर्म कर लेते हैं. नहीं, आपने जो मटेरियल शेयर किया था ना, वही मैं खोल के बैठा हूँ. हाँ सर्टनली, है ना. देखो अभी तो फिर भी बेरेक्ट लेके पढ़ाता हूँ आपको. अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो कभी हाथ में कुछ था ही नहीं मेरे. नहीं सर, वो है प्रॉपर ऑफिसर में इधर उधर हो ही जाता है, कितना है भी ना? याद रखो कभी निकल ही जाता है दिमाग से. तो चांसेस हैं कि उसमें कभी ऐसा कुछ हो जाए. ओके, एनीवे रेट्स मैं आपको बताता हूं अभी से, क्योंकि अभी दूसरी जगह वो हैं. सो रेट्स आर फॉर 3 मंथ, हर 3-3 महीने को उन्होंने ब्रेक किया हुआ है. सो फर्स्ट 3 months 95%. 95%. दिस इज 95%.
95. Next, 3 to 6, 85%. 85%. 85%. Next, 75. ठीक है। जी अब यहाँ कितने महीने हो गए? 9. 9 महीने हो गए। इसको हर 3-3 महीने ब्रेक करके उसको 36 महीने तक ले जाओ। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right. And everywhere it is reduction is by 5%. Everywhere reduction is by 5%. Right. तो 75 के बाद फिर क्या आएगा? 70. 70. 70, 65, then 60, then 55, then 50, then 45, then 40, and then that way further reduction goes on. Right. So here rates are given for 3 years, and what is given here is 2 years. So extension can be given, but how long? It will also not go beyond 1 year, because after that the rates are not available. So it means the government has restricted that. Earlier rates were there up to 4 years as well, but now the rates are only up to 3 years. Yes. So extension can be granted, but not beyond a period of 1 year. Right? Then the another most important condition is the goods shall be identifiable. So government has already declared certain goods as non-identifiable for the purpose of duty drawback. So if those are non-identifiable, even those are being written within 15 days, still there is no duty drawback. So government has already declared certain goods like ready-made garments or saffron, saffron, tea चाय leaves. पत्ती, tea leaves, right? So ये कुछ examples हैं जहां पर government ने मना ही कर रखा है कि these are not identifiable for the purpose of duty drawback. So goods shall be identifiable, and then ITC not claimed. तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने सब चीजों का ले लिया तो या फिर यहां पर आपको पूरे अमाउंट का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली फॉर IGST. It is not available for BCD. So if ITC has been taken, then there are two options: either make the reversal of ITC and claim the full refund here. Alternatively, continue with the input tax credit and balance amount, that is basic custom duty, can be refunded here. So it's a matter of choice. So condition is input tax credit has not been claimed. Okay. Now let us go and see in the section what is given. So section 74, this says when the goods, is it legible or I increase the size? Increase कर देंगे तो better थोड़ा रहेगा. सा. Okay. 125 150 करके 125 है ना साइज अभी. जूम जूम साइज का बढ़ा देते हैं, हाँ 150 कर देते हैं. ओके. Is this okay? Yes. यस सर. 200 तो शायद चलेगा नहीं. 200 चलेगा. चलता है. नहीं, वो चल सकता है, लेकिन फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ेंगे सबको, और कुछ नहीं है, ओके सर. है ना? और अगर कैमरा बंद कर दिया तो मजा थोड़ा सा खराब हो जाता है. फेस दिखता है तो सर ये थोड़ा ठीक है सर. ये रहता ठीक है. कोई ऐसा देख रहे काम करना अब पड़ेगा. देखो अब कितना दिख रहा है, ठीक है सर. अच्छा. ज्यादा ही बड़ा हो गया. यस सर. सर आप नहीं दिख रहे हो. मैंने तो दिख रहे हटा हो लिया सर. ना. आप भी दिख रहे हैं. आप भी दिख रहे हैं. Okay. So here
when the goods capable of being easily identified. तो पहली कंडीशन क्या डाली? Easy identifiable goods. Which have been imported into India upon which duty has been paid, right? So if the goods deposited in warehouse are exported, तो duty drawback मिलेगा? No, sir. उस पर duty drawback नहीं होगा, because the duty has not been paid, right? Okay. Are entered for export and the proper officer makes an order under section 51, means the permission is granted for export, or goods are taken out by way of baggage, or those are exported by way of post. So in nutshell, there is an export either under section 15, 51 or under 77 or by way of post. तो ये सारे clauses आपको अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है. In nutshell, you can say goods are returned or exported in any manner. Then how much amount is refundable? 98%. Except as otherwise provided, we repaid as a drawback. And as the goods are identified to the satisfaction of ACDC, and the goods are entered into export within 2 years from the date of payment of duty, provided that in particular case the aforesaid period of 2 years of sufficient cause be extended by the board. Yes, this is correct. तो यहाँ पर जो आपने लिखा था वो उसको जरा ठीक कर लें. So this may be extended by the board, so that can be maximum rates are already given up to a period of 3 years. Okay, so it cannot go beyond 3 years. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the rate of duty drawback in case of goods which have been used. So 98% is for what? If the goods have not been used. Unused. Right. So if those are used after importation, there shall be such as the central government having regard to the duration of use, depreciation, etc. may prescribe. So what is already given in the notification that I have already given to you? So 95, 85, 75, then 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40. Those rates are there. Then the central government may make rules for the purpose of carrying out the provisions, and this will provide for the manner in which the identity of the goods imported in different consignments ordinarily stored in bulk may be established. Specify the goods which shall be deemed not capable of being identified. तो ये तो एग्जांपल हमने ऑलरेडी ले लिया कि द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सर्टेन गुड्स व्हिच विल बी ट्रीटेड एज नॉन आइडेंटिफाइबल. इट मींस ड्यूटी ड्रॉबैक विल नॉट बी अवेलेबल एंड प्रोवाइड द मैनर फॉर टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द ड्यूटी ड्रॉबैक. तो यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने का टाइम कितना है सेक्शन 74 में? 3 months. Within 3 months from the date of export, duty drawback shall be claimed. और जब क्लेम करने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मेनली फाइल करना पड़ेगा? EGM. काय का EGM? शिपिंग EGM को फाइल करने की जिम्मेदारी किसकी? सर अब तो साला सब खुद हमको ही दे दिया है ऑनलाइन में, सब हमें ही करना पड़ता है. क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो EGM करने की जिम्मेदारी शिपिंग लाइन की आपकी थोड़ी है ना? तो किसको करना पड़ेगा क्लेम? एक्सपोर्टर को, राइट? अब एक्सपोर्टर कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा? शिपिंग. सबसे पहले तो ड्यूटी पेमेंट के एविडेंस दो ना आप कि आपने ड्यूटी पे करा था. लियो या बिल. किसका रिफंड मांग रहे हैं? ड्यूटी पेमेंट किया था, ड्यूटी पेमेंट का. राइट. तो ड्यूटी पेमेंट का डॉक्यूमेंट कौन देगा? राइट. तो वो डॉक्यूमेंट पहले लगेंगे, बाद में फिर आपके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सेक्शन 51 के अप्रूवल का कॉपी लगेगा, और बात की बात है. फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर देयर इन द एविडेंस ऑफ इंपोर्ट एंड फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी. राइट. तो वो आपको पता है कौन से हैं. तो जब इंपोर्ट का था उस समय का इनवॉइस प्लस आपका बिल ऑफ एंट्री प्लस ड्यूटी पेमेंट एटसेट्रा, दोस डॉक्यूमेंट्स प्लस शिपिंग बिल और द बिल ऑफ एक्सपोर्ट. नाउ उसका इनवॉइस, उसका वैल्यूएशन, वो सब अगर आप फाइल करेंगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम मिलेगा. एंड एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 3 months एंड देयर इज नो नीड टू फाइल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर एवरी कंसाइनमेंट और एवरी आर्टिकल गुड्स एंड रिटर्न. तो विद इन 3 months जितना भी किया वो सब आप एक साथ सिंगल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं. For the purpose of this section, goods shall be deemed to have been entered for export on the date when the reference to date of duty is calculated under section 16. तो एक्सपोर्ट के लिए कब मान लिया जाएगा? जिस दिन लियो हुआ. सेक्शन 16 में कहा गया है कि जिस दिन सेक्शन 51 की परमिशन मिल जाएगी. लीव तो बाद में होगा, लोडिंग बाद में ही होगा. सेक्शन 16 में रेट ऑफ ड्यूटी का रेफरेंस है ना, एज ऑन विच डेट? क्लियरेंस. The date on which permission is granted by the officer under section 51. यस सर. Right. लोडिंग उसके बाद होगा ना? यस. राइट.
So it is not the question the day on which the goods are leaving. This is for the goods shall be deemed to have been entered for export, right? तो आपका तो जिम्मे आपका यहाँ से शुरू हो गया, एक्चुअल एक्सपोर्ट होते होते हो सकता है कि वैसा अभी 1 महीने यहीं खड़ा रहे, तब क्या करेंगे? Then in case of goods assessed by duty provisionally assessed, then the date on which the provisional assessment is finalized. तो ये है पूरा सेक्शन 74. तो 74 में जो चीज समझने की है वो खास चीज क्या है? What is the main thing? Whatever is the main issue therein, everything is on the board. Excuse me सर, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सब आप डिलीट करिएगा प्लीज. किसका? इसी का सर, बोर्ड का. मैं खड़ा हूं ना, सामने मेरा ले लो. आपका भी ले लिया सर बोर्ड. बोर्ड. ओके, थैंक यू सर. सर ये पर आफ्टर मैंने एवरी late 3 join मंथ्स किया था 10% सर, डिप्रिसिएशन ही लगेगा सर? पहले 9 महीने तक, उसके बाद 5% कम होगा. ओके. तो सबसे पहले कितना कम हुआ? पहले तो सर सबसे फर्स्ट 3 मंथ्स यूज में तो 95 5%. 5%. हाँ सर उसके बाद 10%, फिर 10%, फिर 10%. जी. उसके बाद 5 till the end of 36 months. ओके. Okay, 36 or 18 sir? 36. 36. 18 के बाद जीरो हो जाता है ना ड्रॉबैक प्राइस. वो कमर्शियल के लिए था पहले, अभी नाउ एवरीथिंग इज सेम. पहले तो बहुत सारे रेट्स अलग अलग हुआ करते थे, है ना? सो एज ऑफ नाउ दीज आर द ओनली रेट्स. तो पहले हम कहते थे गुड्स इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज एंड कमर्शियल यूज, दीज आर डिफरेंट. फॉर कमर्शियल देयर वर 18 मंथ्स ओनली एंड फॉर पर्सनल यूज रेट्स वर देयर अप टू 4 इयर्स. तो बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए हैं. सर प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने एक मोटर व्हीकल के लिए अलग चार्ट बनाया था, तब हाँ. वो नहीं है ना, यही हाँ, है? सर. नहीं, अब केवल यही है. अच्छा सर, वो तो कैंसिल कर देता, वही पड़ा है. वो सब हटा दो. हटा देता. ओके सर. सर तो 4 साल का था, तो 4%, 3%, 2.5%. वो सब हट गया ना, वही. तो अब सिंपलीफाई हो गया ना ज्यादा. सर तो इसमें सभी मोटर्स, व्हीकल और कमर्शियल सब अब आ कोई गए. जरूरत नहीं है, कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. इट इज रिमेन सेम, right? So whether goods are used for personal use or commercial use, the rates will remain same. Whether that is motor vehicle or some other article, that will remain same. Okay. अब अगर मान लीजिए कोई रेसिंग कार अगर इंडिया में लाते हैं आप और किसी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस पर ड्यूटी भरना पड़ेगी या नहीं? नो. 80 करंट में आएगा. 80 कार्नेट में आ जाएगा सर. 80 80 कार्नेट में कवर होगा. 80 कार्नेट. सॉरी. हाँ, 80 है कार्नेट रिटर्न फाइल. तो उसमें क्या एग्जाम्पशन दे रहे हैं आपको? ड्यूटी एग्जाम्पशन. सर ड्यूटी किस चीज से? एग्जाम्पशन. No, किस no, चीज से? sir. It is coming for exemption, sir. वही तो पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पशन क्या है उसमें? Exemption for का any है. product कोई which is वैसा coming कोई for नेवल प्रैक्टिस के लिए या कोई for practice or आता है. for showcase or for some expo, if any product is coming from outside India, तो उसमें ड्यूटी फ्री मिलता है सर, अलाउंस. वो ठीक है ना? Yes. अब आपको दूसरी बात समझना पड़ेगी. हमने कहा रेसिंग कार आ रही फॉर पार्टिसिपेशन इन द रेस, राइट? सो दैट इज नॉट एन एग्जीबिशन, दैट इज अ प्योर प्रोफेशनल एक्टिविटी. तो पहले उस पर ड्यूटी भरो और जब आप कार वापस ले जाएंगे तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेना, है ना? और उसमें कितनी गाड़ियां रेस में डैमेज हो जाती हैं? जी सर, काफी हो जाती है. होती है ना? अगर डैमेज अगर होगी तो फिर ड्यूटी कौन भरेगा उस पे? Yes, sir. इसलिए पहले ड्यूटी भरो, राइट? और जब वापस ले जाएंगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे. सर तो फिर नो ड्यूटी ड्रॉबैक में मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज लेस देन ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम होगा. उसमें वो नहीं आता ना. यहाँ पर ये सेक्शन 74 में द गुड्स बीइंग ब्रॉट इन द सेम गुड्स आर बीइंग रिटर्न और एक्सपोर्टेड. सर फिर वो जो व्हीकल्स है जो और उसकी डैमेज मार्केट हुई है वैल्यू रेस कम हो में, गई तो नहीं आएगा ना? अगर तो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो गए तो फिर तो कुछ नहीं मिलना है. सर डिस्ट्रॉय होगा तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. तो रिफंड में जाएगा. सर गुड्स शैल बी रिटर्न्ड और एक्सपोर्टेड, राइट? अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो गुड्स ना बचे, फिर तो स्क्रैप हो गया. डिस्ट्रॉय मतलब अगर थोड़ा डैमेज हुआ है, जैसे डैमेज हुआ तो वैल्यूएशन कम हुआ ना, फिर आपके पास रेट है ना, एमिशन में जाएंगे, है ना? तो रेमिशन का ड्यूटी पर पे करके आप लाए हो ना उसको. तो रेमिशन तो आते समय होता है, जाते समय थोड़ी रेमिशन. हाँ ये वो भी सही.
राइट। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस बात को क्लियरली समझ लें कि अगर आप रेसिंग में अगर कार के लिए लाते हैं तो पहली बात तो वैल्यू क्या है उस गाड़ी की? वैल्यू बहुत हाई है सर। वैल्यू इज रनिंग इनटू करोड्स ऑफ रुपीस। यस sir. राइट। तो वो और अगर मार्केट वैल्यू से तो नीचे होगे नहीं, क्योंकि ड्रॉबैक आपको 1% या 2% मिलने वाला है यहाँ। है ना, तो इसलिए कहानी जो है उतनी सिंपल नहीं है। केवल ये समझ लीजिए कि गुड्स ब्रॉट इन इफ दोज आर बीइंग रिटर्न और एक्सपोर्टेड देन ड्यूटी ड्रॉबैक इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 74 that goods shall not be in the category which are declared by the government as non-identified and goods are returned or exported within the period of 2 years unless extension is granted by the central board. तो वो जो पहले मैं गलती कर रहा था वो भी that is rectified. So extension can be granted by the board, right? तो वो एक्चुअली गलती नहीं है, वो पहले वो था ही से अपने पीछे के पास जब वो सारे रेट्स अलग अलग थे ना। मैंने तो पुराने नोट्स में वही लिखा था, अभी एक्चुअली मेरे हाथ में मटेरियल था तब मैंने पढ़ा हाँ। तो मुझे आइडिया नहीं अच्छा हुआ वो उसमें अभी हाईलाइट कर दिया, क्योंकि वो ये जब रेट बदले तो वो भी बदल गया। ओके, नाउ हियर फ्रॉम वी मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज Section 75.